Okay, so we are back. Thank you so much, Vinita ji, for your wonderful presentation and keep on learning and coming in the class. चलिए, तो ये था विनीता जी का presentation. चलिए, so मैं थोड़ा सा कुछ point add करना चाहूंगी, है ना? 2-3 point add करना चाहूंगी, but before I add some points, I want other students to perform. So let's finish this, presentation part. So चलिए, who is next? Rahul, come on, you are next in the class. After Rahul, Harish will Yes, come. ma'am. राहुल के बाद हरीश आएंगे. ओके राहुल, कम ऑन. सो आई एम शोइंग यू द स्क्रीन, है ना? मैं आपको स्क्रीन शो Good कर. evening, ma'am. हाँ जी, यस. I'm Rahul Amrute. I'm from District Uni, MP. I'm a student of agriculture. My profession is listening songs. My hobbies are driving, and there are 4 members in my family. राहुल, My ओपन योर father's कैमरा, name, ओपन योर my कैमरा. father's is camera open. My father is a योर फादर इज अ. आराम से बोलिए राहुल, कोई दिक्कत नहीं है. आराम से बोलिए. प्रेजेंटेशन, कम ऑन. network issue. It's okay, no problem. My mother is a homemaker. I have 2 brothers, and my best friend was Tiwari. Okay. So you are a student, you are agriculture student. In which year are you? In which year are you? Second year. You are in second year. Which college? In which college? Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore. So you are regular students, you go regularly? I mean, so colleges are open now? Yes, ma'am. अभी तो close है. Right now, college is closed right now. Okay. Thank you so much, Rahul. Nice presentation. Yes, sweet and short. Thank you so much. Keep it up. Okay. And Harish, you are next. Thank you, ma'am. Harish, are you done with your presentation? Have you given? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are done. Yes, ma'am. Yesterday you gave, right? Okay. Yes. No, ma'am. No, ma'am. हाँ, मुझे ऐसा लगा. You are remaining. No. Come on, you should do that. Come on. Hello, good evening, everyone. I am Harish. I am from Maharashtra in the Nasik city. I am an civil engineer profession. I am are playing cricket, reading books, and there are 5 members in my family. My father is farmer and my mother is a house worker. I have 2 sisters, no brother. Okay. And what about your best friend? Do you have any bosom friend? Langotia yaar? My best friend is Rajan. Rajan. Okay. And so many friends. Okay. That's good. So I should say you have many friends. That means you are extrovert. Extrovert word सुना है आप लोगों ने guys? Extrovert. So many friends. Introvert. Okay. तो चलिए कुछ words हम पढ़ने वाले हैं. Extrovert, introvert मैं आपको बताने वाली हूँ. Thank you so much, Harish. So Harish, what's your plan in future? Job continue, ma'am. You want to continue your job and you want to have growth, right? Okay. Chalo. Yes, So that was Harish. Thank you so much, Harish. Very nice presentation. Okay. So next, all are done, right? Shibu, you are done, right? Shibu is also done. Jashan is yes, ma'am. Jasim, are you remaining? Jasim, you are last, I think. Jasim is only remaining. Okay, Jasim, come on, conclude the presentation part today. Okay. So Jashan broke the ice yesterday. Jashan ne Shri Ganesh kiya tha. Jashan broke the ice, and the last student is kya naam hai? Jasin. He will conclude the presentation part. Come on. Hello everyone. Hello. Introduce myself. Open your camera.
ओपन योर कैमरा जसिम. ओके नाउ जसिम आई कैन सी यू नाउ, है ना. अभी तक मैंने आपको देखा भी नहीं, मतलब मेरे दिमाग में कोई इमेज बनी नहीं रही थी कि जसिम कैसा होगा देखने में, हाउ डज ही लुक. प्लीज प्लीज. स्टार्ट करें मैम? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज स्टार्ट कीजिए प्रेजेंटेशन. जसिम. I am Jasim. Hi friend, my name is Jason Singh. My father name is Sukhmandir Singh. My mother name is Sabjit Kaur. I have the one brother. My brother name is Gursev Singh. I am not the social guy. It's this reason for I not have the many friends. And my hobby is reading books and I like so much workout and anything like workout. And I studying for 11th grades class. So please. जशन, आई थिंक आपने प्रेजेंटेशन कल दे दिया था. Do you remember you gave presentation? I called Jasim. Jasim. मैंने जसिम को बुलाया. कोई बात नहीं, it's okay. It's okay जशन. Very nice. I appreciate you for this. है ना. जसिम आपको देना है JASIM, जसिम राजा, right? Please आपको presentation देना है. Yes. Very good, but Jasim, I appreciate you for this. Hello everyone. Introduce myself. I am Jasim Raza. I am from Delhi, India. Mm-hmm. I am a student Mm-hmm. in Jamia Millia Islamia, New Delhi. Mm-hmm. I am quality reading, writing in Urdu. Okay, reading and writing. Okay. Reading, writing in Urdu. Mm-hmm. Literature. Mm-hmm. My hobbies are playing cricket, football, volleyball, Mm-hmm. and there are 5 members in my family. Okay. My father is Manzoor Alam Mm-hmm. and businessman. Okay. And your mother? My mother is Zinat Parveen, Mm-hmm. housewife. Okay. And I siblings? have Mm-hmm. 2 brothers and 3 sisters. Okay. My And best friend Mm-hmm. Azhar Raza. Okay. So, Jasim, you are saying that you are a student. So, what are you doing? What's your subject? Graduation in Urdu, Jamia Millia Islamia. Repeat. Could you repeat? I didn't get you. आप repeat करिए. I'm a student Jamia Millia Islamia in Urdu department. Okay. So you are youngest at your home, or you are middle, or you are eldest at your home? Younger. You are youngest. Okay. Yes. Okay. So your sisters are married or unmarried? Or they are studying? Married. They are married. Okay, that's good. Thank you so much, Jasim. Jasim, thank you so much. Actually, Jasim, gave me feedback. I was, taking attendance yesterday, and I saw that there's one student, he gave me, feedback. He's continuously giving me feedback. So मैंने देखा जैसिम, बट मुझे वो शक्ल क्या होता है ना, हम जब मार्क करते हैं अटेंडेंस तो हमें स्टूडेंट्स का चेहरा नजर आता है कि भाई ये जशन है, ये भक्ति है, ये शिवम है, ये राहुल है. बट व्हेन आई वाज टेकिंग योर अटेंडेंस जैसिम, मैंने कहा जैसिम आता तो है बट मैंने कभी देखा नहीं, आई हैव नेवर सीन यू ना. सो यू इफ यू आर शाइंग इट्स ओके, पहली दूसरी क्लास में हमें लगता है, बट ट्राई टू बी ऑन द कैमरा, है ना. ओके जैसिम. ओके, नाइस प्रेजेंटेशन बाय जैसिम, थैंक यू सो मच. नाउ like to share some points with you. मैं कुछ points आपसे के साथ share करना चाहूंगी, है ना. important points, ये सभी के लिए हैं, है ना. उसके बाद हम grammar continue करेंगे. कुछ spoken के points हैं. पहला point number 1, है ना. आप चाहे तो copy में लिख सकते हैं या recorded class, अगर recorded video attend कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, जो आपको लगता है आपका use है तो आप कर सकते हैं. अच्छा, मान लीजिए मैं graduation कर रही हूँ या मैं post graduation कर रही हूँ. सपोज मैं एमएससी कर रही हूँ, है ना. एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, फिर समझिएगा. मैं एमएससी कर रही हूँ. किसी ने मुझसे पूछा कि आप एमएससी कर रहे हो, आपका सब्जेक्ट क्या है ना. तो मैं बोल सकती हूँ व्हाट्स क्या बोलेंगे, व्हाट्स
व्हाट इज नहीं बोलूंगी, मैं क्या बोलूंगी, व्हाट्स। अभी हमने पढ़ा था ना कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज कभी नहीं बोलेंगे, अब आप क्या बोलेंगे, व्हाट्स। आपने वो गाना सुना होगा ना, व्हाट्स योर राशि, सुना है गाना वो एक, व्हाट्स। सो व्हाट्स योर स्ट्रीम या ब्रांच या सब्जेक्ट, जो भी आप यूज करते हैं, इंजीनियरिंग में बहुत यूज करते हैं वर्ड हम, है ना, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि मैं एमएससी कर रही हूँ फिजिक्स से, मैं एमए कर रही हूँ इकोनॉमिक्स से, मैं एमए कर रही हूँ म्यूजिक से, मैं बीएससी कर रही हूँ बायोटेक से, ऐसे बताना है। तो आप कैसे बोलोगे, जैसे मुझे बोलना है मैं एमएससी केमिस्ट्री से कर रही हूँ, तो उसको कैसे बोलेंगे अपन? I am study for BSc. आई एम, थोड़ा सा और चेंज करो, कोई और बताए। जशन आपका भी सही, I am pursuing MSc in physics. ठीक है। Yes, ma'am. आपने बोला आई एम परसुइंग, आई एम डूइंग, आई एम स्टडिंग, ठीक है, सब बोल सकते हैं। आई एम परसुइंग, आई एम डूइंग, आई एम स्टडिंग, एमएससी। इन नहीं बोलेंगे, इन कभी नहीं बोलेंगे, इन कभी नहीं बोलेंगे, इन नहीं बोलना है, ये मैं बता रही हूँ। तो कभी भी सब्जेक्ट की बात आती है तो कभी भी इन यूज नहीं करना है, कभी भी फ्रॉम यूज नहीं करना है, आपको यूज करना है WITH विथ। आई एम डूइंग MSc विथ केमिस्ट्री। आपको सब्जेक्ट के साथ या ब्रांच के साथ हमेशा विथ यूज करना है। मैं मानती हूँ कि हिंदी में हम बोलते हैं मैं MSc केमिस्ट्री से कर रही हूँ, मैं MSc मैथ से कर रही हूँ, तो फ्रॉम का मतलब हमें लगता है से होता है, नहीं। जब आप ऐसे सब्जेक्ट की बात करते तो आपको विथ यूज करना है। अब मुझे बोलना है कि मैं MSc कर रही हूँ मैथ से, तो मैं कैसे बोलूंगी? I am studying with for MSc. आई एम डूइंग MSc विथ मैथ्स, ठीक है। चलिए, मैं कर रही हूँ MSc फिजिक्स से, तो कैसे बोलेंगे? आई एम डूइंग MSc विथ फिजिक्स, ठीक है। अब मान लीजिए आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जैसे हरीश ने इंजीनियरिंग की है ना? क्या ब्रांच है? व्हाट वाज योर ब्रांच हरीश? व्हाट वाज योर ब्रांच? मैम, सिविल ना? सिविल इंजीनियरिंग। सिविल, जी ठीक है। मैम। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, मान लीजिए कोई सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, तो वो ऐसा बोल सकता है आई एम डूइंग इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग नहीं होता, पहली बात इंजीनियरिंग होता है विथ सिविल। क्या बोलेंगे आप? विथ सिविल, ये बोलेंगे आप। आई एम डूइंग इंजीनियरिंग विथ सिविल, आई एम डूइंग इंजीनियरिंग विथ जो भी ब्रांच हो, विथ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, है ना, जो भी हो, तो विथ के साथ लगाना है। अब मैं कर रही हूँ BSc, तो मैं बोलूंगी आई एम स्टडिंग BSc विथ बायोटेक। मैंने बायोटेक से BSc की थी, तो मैं बोलूंगी आई एम डूइंग या आई एम स्टडिंग BSc विथ बायोटेक, है ना। तो इस तरह से आपको ब्रांच के साथ क्या लगाना है? विथ लगाना है। क्लियर है? अच्छा, हरीश का तो स्टडी कंप्लीट हो गया, तो हरीश ये बोल सकते हैं इंटरव्यू के दौरान कि आई डिड, क्या बोलेंगे आप हरीश? आई डिड इंजीनियरिंग, आई डिड इंजीनियरिंग विथ सिविल, आप ये बोल सकते हो। और सिंपल आप बोल सकते हो आई हैव डन सिविल इंजीनियरिंग, है ना। सिंपल भाषा में अलग अलग तरीके होते हैं। आई हैव डन माई इंजीनियरिंग विथ सिविल, और आई हैव डन सिविल इंजीनियरिंग, वो भी एक सेंटेंस है, बट मैं आपको बता रही हूँ विथ यूज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक और फ्रेज है। कभी भी बहुत से लोगों ने अपनी हॉबीज की बात करी, मैं सुन रही थी, बहुत से लोगों ने अपनी हॉबीज की बात करी। हॉबीज क्या होती हैं? हॉबी इज समथिंग दैट यू डू इन योर फ्री टाइम। जब आप फ्री होते हैं और जो आपको करने में अच्छा लगता है, वो आपकी हॉबी होती है। फ्री टाइम मतलब लेजर टाइम। फ्री टाइम को क्या बोलते हैं? लेजर टाइम भी कहा जाता है। लेजर टाइम क्या कहते हैं? लेजर टाइम। ओके, तो एक बच्चे ने कहा कि भाई मुझे म्यूजिक सुनना बड़ा पसंद है ना। तो एक बच्चे ने बोला आई या माय हॉबीज, उसने ऐसा बोला था माय हॉबी, जिसने बोला होगा, है ना, मतलब मैं सभी को बता रही हूँ ये। माय हॉबी इज लिसनिंग म्यूजिक जैसे बोला, तो कभी भी लिसनिंग बोल दो तो लिसनिंग के साथ टू आएगा।
कभी भी लिसनिंग म्यूजिक नहीं होता, हमेशा लिसनिंग टू म्यूजिक होता है। सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, लिसनिंग टू म्यूजिक होता है, लिसन के साथ हमेशा टू आता है ना, राइट। पहला पॉइंट करेंगे मैं, प्लेइंग के साथ नहीं आएगा, सुनिए, लिसनिंग के साथ टू म्यूजिक आएगा, वही मैं बोल रही हूँ, म्यूजिक की बात करो ना, म्यूजिक सुनना पसंद, उसके साथ लिसनिंग टू म्यूजिक ही आता है, लिसन के साथ टू आएगा, जहां भी लिसन समझ में आ रहा है वर्ड वहां टू आएगा साथ में, टू। अच्छा, एक और बात, जब भी हॉबीज की बात आती है तो आप कुछ फ्रेजेस यूज करिए, यूज सम ब्यूटीफुल फ्रेजेस, जैसे आई लव, आई लाइक। जैसे आपने बोला माई हॉबीज लिसनिंग टू म्यूजिक, आप ऐसा भी बोल सकते हो आई लव लिसनिंग, आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, ये भी बोल सकते हो, है ना। आई एम फॉन्ड ऑफ, एक और सेंटेंस है आई एम फॉन्ड ऑफ या एम फॉन्ड ऑफ। जैसे मुझे पेंटिंग का बड़ा शौक है, माई हॉबीज पेंटिंग। हाँ जी, कैसे, पूछिए क्वेश्चन। फैन ऑफ, एम फॉन्ड ऑफ है, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ है ना, एम फॉन्ड ऑफ मतलब मुझे शौक है, मुझे ना एक्चुअली हॉबीज की जब आप बात करते हैं तो आई एम फॉन्ड ऑफ यूज कर सकते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ा शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, ये मैं आपको बता रही हूँ, मुझे पेंटिंग बड़ी पसंद है ना। मुझे मूवी देखने का बड़ा शौक है, बहुत से लोग जब फ्री होते हैं उनको मूवीज देखना पसंद है, तो आप बोल सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज। तो हॉबीज की जब बात आती है तो आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम जब आपको बोलना, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग स्पेशली हॉलीवुड मूवीज, है ना, मुझे हॉलीवुड मूवीज अच्छी लगती हैं, फिक्शन मूवी, फिक्शन आप समझते हैं, साई-फाई, है ना, तो आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग हॉलीवुड मूवीज स्पेशली फिक्शन, है ना। और एक और सेंटेंस है, आई एम इंटरेस्टेड इन, आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग म्यूजिक। थोड़ा सा अलग हो जाता है, अगर आपको अपनी दिलचस्पी बताना है कि आजकल मुझे म्यूजिक का बड़ा भूत सवार है, तो म्यूजिक सीखना है, सो आई एम नाउअडेज इंटरेस्टेड इन लर्निंग म्यूजिक, तो इस तरह के सेंटेंस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आप सभी ने यूज करा बट फिर भी मैं बताना चाहूंगी, होम मेकर। मदर के लिए हाउस वाइफ नहीं यूज करेंगे, हम क्या वर्ड यूज करेंगे, होम मेकर। क्या यूज करेंगे, होम मेकर इज मोर करेक्ट। अच्छा, एक और बात, मान लीजिए आपके घर में आप सबसे ज्यादा लाड़ प्यार में पले हो, मतलब आपके घर में सबसे ज्यादा लाड़ लोग आपको करते हैं, ऐसा होता है ना कि अरे आज को तो बहुत लाड़ मिलती है, स्पेशली जो छोटे होते हैं ना उनको ज्यादा लाड़ मिलती है, तो लाड़ मिलने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लाड़ करते हैं ना छोटे, अपने छोटे भाई बहन को, या घर में जो छोटा होता है उसको लोग ज्यादा लाड़ करते हैं, तो लाड़ करने को क्या बोलते हैं, एनी आइडिया। पैम्पर, 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 क्या बोलेंगे, पैम्पर। No, I am youngest in my home and everybody pampers me. मैं बहुत लाड़ दुलार से पला हुआ हूँ, तो I am pampered one, ऐसे बोल सकते हैं। मैं घर में सबसे ज्यादा मुझे लोगों ने प्यार किया है, कई बार लोग बोलते हैं बिगाड़ दिया है प्यार में, ज्यादा लाड़ प्यार से, तो बोल सकते हैं I am pampered one और he is pampered one, है ना। पैम्पर्ड मतलब दुलार लाड़ करना, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट और थे रिमेनिंग, चलिए हाँ, जब आप अपनी क्वालिटी की बात, किसी ने क्वालिटी नहीं बताई, एक आध बच्चों ने क्वालिटी बताई, है ना, किसी ने क्वालिटी नहीं बताई। क्वालिटी बताना बहुत जरूरी है जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं। चलिए मैं 3 वर्ड्स बताती हूँ आज आपको। एक्सट्रोवर्ट, अगर आपने सुना है तो, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट and ambivert. Extrovert, introvert and ambivert. आप मुझे बताएंगे आप किस तरह के व्यक्ति हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट हो कि एम्बिवर्ट हो, ठीक है। I am extrovert. You are extrovert. Who is saying this? कौन बोला? I am extrovert. शिवम ने बोला, शिवम, चलो ठीक है, शिवम समझ गया, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, एक्सट्रोवर्ट वो पर्सन होता है जो जो शाय नहीं करता, मतलब
ज्यादा शाय नहीं करता, थोड़ा सा ओपन रहता है, ओपन होता है, लोगों से ज्यादा जल्दी ओपन हो जाना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो जल्दी ओपन नहीं होते, उनको टाइम लगता है ना। आपने देखा होगा कि अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सबसे बात करेंगे, इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे, फर्स्ट बेंच पे चले गए, फिर सेकंड बेंच पे चले गए, फिर थर्ड बेंच पे चले गए, तो इधर उधर घूमते रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक जगह बैठे हैं, फर्स्ट से लास्ट पीरियड में वहीं बेचारा बैठे रहेंगे, ज्यादा लोगों से बात नहीं करेंगे। तो सिंपली जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट, देखो इंट्रोवर्ट होना कोई बैड क्वालिटी नहीं है ना, इसको नेगेटिव मत लीजिएगा। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट अपने आप में एक अलग अलग क्वालिटीज हैं, ये आपकी पर्सनालिटी है, उसको एज अ पॉजिटिव लेना है आपको। ओपन हो जाते हैं, वो फ्रेंडली होते हैं, थोड़े से फ्रेंडली भी होते हैं, जल्दी फ्रेंड्स बनाने लगते हैं, है ना। पर जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो ओपन नहीं होते जल्दी, और जल्दी फ्रेंड्स नहीं बनाते हैं, है ना, थोड़ा उनका फ्रेंड सर्कल छोटा होता है। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, दुनिया के जितने राइटर्स होते हैं ना, राइटर्स मान लीजिए, पेंटर्स मान लीजिए, एक्टर्स मान लीजिए, ज्यादातर वो होते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट लोग ज्यादातर क्रिएटिव निकलते हैं। ऐसा कोई एक आंकड़ा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट ऐसा देखा गया है कि जितने महान राइटर्स निकले हैं, पेंटर्स निकले हैं, साइंटिस्ट निकले हैं, वो इंट्रोवर्ट होते हैं, है ना। वो दूसरी अलग अलग टैलेंटेड, इंट्रोवर्ट भी एक पर्सन टैलेंटेड हो सकता है, एक्सट्रोवर्ट भी टैलेंटेड हो सकता है, बट वो क्वालिटी होती है ना। ठीक है, एम्बीवर्ट समझते हो, हम लोग थोड़े बड़े हो जाते हैं तो एम्बीवर्ट हो जाते हैं। एम्बीवर्ट मतलब ना ज्यादा एक्सट्रोवर्ट ना ज्यादा इंट्रोवर्ट, दोनों के बीच में एवरेज। तो अब आप मुझे बताइए, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट हैं कि एम्बीवर्ट हैं, है ना। कल बताइएगा, है ना, सोच के बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, एक्सट्रोवर्ट हूँ कि एम्बीवर्ट हूँ, है ना। चलिए एक और वर्ड, लास्ट वर्ड, एम्बीवर्ट। हाँ मुझे भी लग रहा था ज्यादातर लोग एम्बीवर्ट में ही आते हैं, है ना, एम्बीवर्ट, दोनों के बीच में। चलिए एक और वर्ड पढ़ते हैं, एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो सब लोगों से दोस्ती करता है। मिलनसार सुना है, मिलनसार, मिलनसार वर्ड सुना है। मिलनसार मतलब ये लड़का तो बहुत मिलनसार है, सबसे दोस्ती कर लेता है, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, एमिएबल। ये भी एक क्वालिटी होती है। एमिएबल मतलब क्या होता है, मिलनसार, फ्रेंडली, जो जल्दी फ्रेंड बना लेता है, सब लोगों से बात करता है, राइट। सो एमिएबल, ये भी एक अच्छी तो पर्सनालिटी। जल्दी घुल मिल जाता है। वेरी नाइस, जो जल्दी बॉन्ड बना लेता है, पर्सन हु मेक बॉन्ड्स इंस्टेंटली, राइट, एमिएबल, घुल मिल जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए सो ये था प्रेजेंटेशन, समाप्त हो गया, फिनिश हो गया। कल हम एक नया स्पोकन स्टार्ट करेंगे, है ना। आई विल स्टार्ट अ न्यू स्पोकन टॉपिक टुमारो, दैट विल बी कन्वर्सेशन। कल हमारा जो स्पोकन पार्ट होगा, सेशन होगा, उसमें हम एक दूसरे से बात करेंगे ना, वी विल टॉक टू वन अनदर। आई विल गिव यू सम टॉपिक्स ऑन दैट, है ना। ठीक है, तो 5 मिनट के लिए हम थोड़ा सा और ग्रामर को टच करेंगे, उसके बाद क्लास हम एंड करेंगे, ठीक है। तो लेट मी जस्ट शो यू द स्क्रीन वंस अगेन। तो देखिए हम ग्रामर पढ़ रहे थे, आज हमने पढ़ा टू बी वर्ब। टू बी वर्ब होता है स्टेट वर्ब जो दशा बताता है। इट इज ऑल्सो non-action verb, is, am, are, was, were, will be, shall be, been and being। चलिए अब कुछ नहीं करना है, मैं एक सेंटेंस बोलूंगी और आपको उसको ट्रांसलेट करना है, बस छोटा सा एक प्रैक्टिस करते हैं। चलिए पहला सेंटेंस है, मैं क्लास में हूँ। कम ऑन, I am in the class. I am in the class. मुझे बोलना है शिवम क्लास में है। Shivam is in in the the class. class. ओके, मैं एक गुड स्पीकर हूँ। I am a good I am teacher. a good speaker. वेरी गुड, आई एम अ गुड स्पीकर। आप एक गुड स्पीकर हो। You You are are a a good speaker. speaker. You are, या you're a good speaker, you're a good You are a You speaker। are a good Very speaker. nice। कैसे बोलेंगे, आज थर्सडे है। It's Thursday. Today It's is Thursday. Very good, Today, very good। Thursday. It's Thursday today, it's Thursday today। कैसे बोलेंगे, मैं एक स्टूडेंट Today. हूँ। I am I'm a student. I'm a I student. am a वेरी I am गुड। a मैं student. एक्साइटेड हूँ। I'm excited. I'm excited. वेरी नाइस। अब मुझे बोलना है, मैं कल क्लास में प्रेजेंट था। पास्ट टेंस। I was present in the class I yesterday. was Very good। present yesterday. I was present in the class yesterday। Okay, अब मुझे बोलना है, कल राहुल क्लास में था।
प्रेजेंट था? कल राहुल क्लास में प्रेजेंट था? Rahul was present in Rahul class was present in yesterday. the class yesterday. Very good. अब आपको बोलना है कल Yesterday. 9 बजे, कल 9 बजे, कल 9 बजे मैं मार्केट में था। मैं कल 9 बजे मार्केट में था। Yesterday, 9 o'clock, I was in the market. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो 9 बजे कल जो टाइम होता है उसको लास्ट में बोलिए, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई वॉज इन द मार्केट एट 9 o'clock yesterday, है ना? टाइम को लास्ट में लेकर आएंगे। आई वॉज इन द मार्केट एट 9 o'clock at 9 yesterday. वेरी नाइस। मैं कल कंफ्यूज था। I was confused yesterday. आई वॉज कंफ्यूज yesterday. ओके, मैं पहले इंट्रोवर्ट था। I was an introvert I was earlier. introverted. वेरी गुड। आई वॉज इंट्रोवर्ट अर्लियर। देखिए सबको बोलना है, ये सिर्फ एक स्टूडेंट को नहीं बोलना है। आई वॉज इंट्रोवर्ट अर्लियर, ठीक है। मुझे बोलना है कि तुम I मेरे was बेस्ट फ्रेंड हो। You are my You best are friend. my और best माय friend. बेस्ट फ्रेंड। my best अच्छा, friend. वेरी नाइस। अब मैं बोल रही हूँ मैं एक अच्छी स्पीकर बनूंगी, मैं एक गुड स्पीकर बनूंगी। I will make the good speaker. I will will be become a good speaker. आई विल बिकम भी बोल सकते हैं, बट आज हम बोलेंगे आई विल बी अ गुड स्पीकर। वेरी गुड। कैसे बोलेंगे I हम? will- वेरी गुड। हमें बोलना है हम गुड स्पीकर्स बनेंगे, हम सब। We We will will The good we speaker. will You will be a be a good good speaker. speaker. we will be आ नहीं होगा क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं। We will be good speakers. We will be good speakers. Speakers. Very nice. Good अब मैं speakers. बोलूंगी कल फ्राइडे होगा या कल फ्राइडे है। Today is It the will Friday. be. It will be Friday tomorrow. Very good. Tomorrow. It will be Friday tomorrow. Very nice. Very nice. तो इसी तरह से छोटे छोटे से बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद अभी मैंने आपको टेंस नहीं पढ़ाया है, अभी जो मेन जो ग्रामर पार्ट है वो भी स्टार्ट नहीं हुआ। अभी सिंपल सिंपल चैप्टर्स हम टॉपिक्स लेंगे राइट ग्रामर के, और कल मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। थोड़े थोड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं और कुछ सेंटेंसेस हैं। तो कल बेसिकली हम दो चीजें करने वाले हैं। एक स्पोकन, नया स्पोकन का टॉपिक लेंगे हम, कन्वर्सेशन का रेगुलरली रहेगा, और सेकंड हम थोड़ा सा ट्रांसलेशन ग्रामर वाला पार्ट टच करेंगे। सो डू यू हैव एनी क्वेरी गाइस? आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है आपके मन में? कल कौन सा टॉपिक लेंगे? कल टॉपिक आपको मिल जाएगा, बता दूंगी, है ना? टॉपिक इंस्टेंट टॉपिक होगा वो, पर वो टॉपिक होगा कन्वर्सेशन, है ना? हम Okay, ma'am. बातचीत करेंगे, है ना? मैं भी रहूंगी साथ में, और आप लोग जो भी बात करेंगे मैं कॉपी में नोट डाउन करूंगी और आपको यूजफुल वर्ड्स एक्सप्रेशन देती जाऊंगी और आपको फीडबैक भी दूंगी। क्लियर है? Okay, okay, ma'am. Okay, Thank you ma'am. so much, guys. Take care. Bye bye. Good night. Have a great time. Thank you so much. Good night. Good night, ma'am. Good night. Good night. Good night. Yes. Thank you so much. Good night.